Hello everyone, welcome in 6th standard. My dear students, today we are going to start our new lesson that name is Religious Trends in Ancient India. See, before I go ahead, now we have to just talk about some Vedic period. Just in our previous lecture or in our previous lesson, we had studied about Vedas. There are 4 types of Vedas and there were some rules and regulation also, as well as there were some Varnas, है ना, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Arya, Shudra, whatever that, all, as well as there were ashram also, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये सारी बातें हमने वहाँ पे सीख ली. We just study it, okay, we just learn it. So after that what happened? That period was Vedic period, है ना, Vedic civilization. And right now we are going to study or discuss about religions, है ना, धर्म. It means that when we just study about Vedic civilization and right now we are studying about religions trends in ancient time, it means that it was changes, बदलाव, वो काफ़ी बदलाव हो चुका था. It was changes, their life, in their life, their thinking, है ना, their daily routines, as etc. So what kind of they changes, what kind of they or what kind of improve religions, that all things we will study in this lesson. इस lesson में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है. So here is first number, just like here is introduction about this lesson, 5th number lesson. Here is introduction about this lesson, 5th number. Let's see what he say. Towards the end of the Vedic period, the minute details of yajna rites acquired undue importance. Okay, you know well about that. उस समय में जो कुछ भी यज्ञ वगैरह होते थे तो वहाँ पे कुछ विधि थी, है ना, कुछ विधि थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. According to that rites, we have to follow that all. And only the prestal class had knowledge of those details. Okay, और जो उच्च वर्णीय थे उनको ही उसका नॉलेज था और वही वो करते थे. अदर नो लॉन्गर हैड नो फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज. और दूसरे लोगों को क्या था, इसकी परमिशन भी नहीं थी, इसकी परमिशन भी नहीं थी ये नॉलेज क्या करना है, एक्सेस करने की. दूसरे लोगों को एक्सेस करने की ये परमिशन भी नहीं थी. द वर्ना सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस बिकम वेरी हार्ड इन द सोर्स ऑफ टाइम. ओके, अभी वहाँ पे जो वर्ण थे, वर्ण दिए गए थे, याद है ना, वर्ण कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, राइट. अभी क्या हुआ है इन दिस पीरियड, अभी वो वर्ण को क्या किया, उसकी मान्यता या फिर उसका इम्पोर्टेंस कम होते गया है, उसका इम्पोर्टेंस अभी कम होते गया है. इसलिए उन्होंने ये क्या बोला है, द वर्ना सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस बिकम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. और वो काफ़ी हार्ड भी गया था क्योंकि वो बहुत सालों से परंपरा चली हुई आ रही थी और अचानक से उसे और उस पर if we want to just go on restrict on that situation, so that time it will be hard, वो hard जाएगा, वो काफ़ी hard जाएगा. So that like same situation happened at that times. A person's social position was decided by the varna into which he was born rather than by his achievement. That is why from the Upanishad period we see that attempt were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to yajna rites. However, the thoughts in Upanishad focus on the existence and nature of the soul. In that Veda, there were 4 kind of Vedas, there were 4 types of Vedas, as well as after that there was Upanishad also. Upanishad में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, नेचर पर, है ना, नेचर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है. It was difficult for ordinary people to understand it. Okay, और उस समय क्या हो रहा था, at that times क्या हो रहा था, it was totally development. और जो पुराने ख्यालात के लोग थे उनको वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गया वो समझने में, वो एक्सेप्ट करने में, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हो गया था. दिस गिव राइज टू डिफरेंट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट. दिस गेव राइज टू डिफरेंट सेक्ट्स दैट emphasize the worship of particular
deities, for example the Shaiva sect of Shiva worshippers. Okay, अभी उस वक्त क्या था कि कुछ पर्टिकुलर जाति के लोग ही पर्टिकुलर भगवान की प्रे करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा वहाँ पे डिसाइड हो गया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर वॉज वन ट्राइब शाइवा किस्म के जो लोग थे या फिर शाइवा प्रजाति के जो लोग थे वो किस भगवान की आराधना करते थे? लॉर्ड शिवा, है ना। शाइवा प्रजाति के जो लोग थे वो लॉर्ड शिवा की आराधना करते थे, भगवान महादेव, है ना, भगवान महादेव। तो उनकी वर्शिप कौन करते थे? शाइवा प्रजाति के लोग। नाउ एंड द वैष्णव सेक्ट ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, और जो वैष्णव प्रजाति के लोग थे, वैष्णव जो प्रजाति के लोग थे वो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे या फिर जो कुछ भी रहे, वहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन आए थे। देन डिफरेंट पुराणास वेयर रिटन विद रेफरेंस टू दिस डेटीज। ओके, और पुराण में ये भी बताया गया था कि किस प्रजाति के लोग किस भगवान की आराधना करेंगे, ये भी बताया गया था। ठीक है, देन सर्टेन ट्रेंड्स अराउंड द 6th सेंचुरी BC। अभी 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 6th सेंचुरी की। ठीक है, मेड अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस रिलीजियस थॉट इन सच अ वे that the common man would understand it easily. Many people realize that every person is free to find ways of his own upliftment. This lead to the establishment of new religions. These religions emphatically state that discrimination on the basis of caste has no place in an individual's upliftment. The work of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha, okay, is of special importance among the proponents of new thoughts. Okay, अभी उसी समय 6th सेंचुरी में क्या हुआ? और थोड़ा सा उगम हुआ और थोड़ा सा विकास हुआ किसके? रिलीजन्स का। और उन्होंने स्टार्टअप किया, इन्होंने वर्धमान महावीर ने और गौतम बुद्धा ने उनके रिलीजन्स के उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ 5.1 here is one point, that point name is जैनिज्म। अभी जो जैन कास्ट के जो पीपल होते हैं उनकी कास्ट कब बनी, कैसी बनी, उनके गुरु कौन है, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नाउ जैनिज्म इज वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स इन इंडिया। देखो, जैनिज्म जो है ये कल परसों नहीं बना है, है ना। ये इसकी जो सेंचुरी थी, ये सेंचुरी 6th सेंचुरी थी, 6वीं सेंचुरी, 6 नंबर की सेंचुरी थी वो। ठीक है, तो जैनिज्म इज वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स इन इंडिया। दिस रिलीजन्स गिव्स importance to the principle of non-violence. According to the Jain traditions, a person who revels religion's knowledge is known as a तीर्थंकार। ओके, मतलब जैनिज्म में जो तीर्थंकार थे, जो उनकी बातें थी, जो उनके थॉट्स थे, वो एक्सप्रेस करते थे, दूसरे लोगों तक पहुंचाया करते थे। ओके, और बेसिकली दे फोकस ऑन और दे बेसिकली देयर प्रिंसिपल वाज नॉन वायलेंस। वो नॉन वायलेंस को ज़्यादा फॉलो करते थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, झगड़े लड़ाई से वो काफ़ी दूर थे। ठीक है, देन अभी ये जो नॉलेज स्प्रेड हो रहा है, वॉट एवर दैट ऑल नॉलेज जस्ट गोइंग टू स्प्रेड टू अनदर पीपल, सो दैट पर्सन वी कैन कॉल तीर्थंकार, है ना, उन्हें तीर्थंकार कहते थे। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकार्स इन ऑल। अभी वहाँ पे टोटली तीर्थंकार कितने? 24 तीर्थंकार।
वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर, और वर्धमान महावीर जो है वो 24वें नंबर के क्या है, तीर्थंकर है। ठीक है, 24 इज नंबर ऑफ 24 तीर्थंकर। वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर इन द जैन रिलीजन्स ट्रेडिशंस। ओके, और जैन रिलीजन के ट्रेडिशंस में वर्धमान महावीर वो 24वें उनके गुरु थे। वी कैन कॉल इट गुरु, वो उनके 24वें गुरु थे। जैसे कि सिख लोग में कौन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। वैसे ही इनके इसमें कौन है, वर्धमान महावीर। सो इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि इस पॉइंट में जैनिज्म जो कास्ट है, जैनिज्म जो रिलीजन है, सॉरी नॉट अ कास्ट, रिलीजन है, जैनिज्म जो रिलीजन है जैन, वो 6th सेंचुरी में आए। देखो वो कितने पुराने हैं, है ना। मतलब जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद जैनिज्म का उगम हुआ, उनका उगम हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में हमने ये देखा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? You understood? Okay, so right now in next video we shall continue our second point. Okay, our second point means for that, about that तीर्थंकरा we will take information। वर्धमान महावीर के बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Okay, so I just expressed in this video, you have to just listen it carefully again and read from your book also. Till then, see you, bye.